Hello and welcome. Light has no meaning without darkness. This is the topic of the essay I am going to discuss for you. In the last essay, I discussed the thing with the help of the PPT. Then I thought that this could be done by anyone. A student in the examination is asked to do everything on the spot. So, if I empower you in the same way, then things will be more beneficial. And this is the reason, believe me, I have not taken anything, I have not worked out anything. I am free from any set from the mind, and I'm going to discuss that thing openly with you. Okay, so see how I develop its logical design and how I fill the I develop the contour and fill the content and create the whole picture. Okay, let's start. And see, light has no meaning without darkness. Yes, if light has no meaning without darkness. See, this is the statement. What does it mean? See the analogy, see the merit of this statement, that this light and this darkness, first of all, you will elaborate the statement. I always say that before you think of intro, first you think of the structures, right? The way a storyteller develops something. Suppose a filmmakers, how they develop the design of the story, plot. So plotting you should do this. Introduction we will think. That is a very interesting thing. But logically what should be there? Light has no meaning without darkness. So this is a philosophical things. So we will discern the meaning. We will discern its meaning. And what does it mean? So in first part we will elaborate the meaning. Elaborate its meaning. Okay, we will elaborate its meaning from all possible angles, and then while elaborating we will come to know that we will try to underscore that what is the philosophy, what is the behind it, what is science, what is everything inside this thing. I am giving you the basic idea that on what basis it is said. We will examine its, then we will examine its validity of the statement. This statement, that what is the validity of this statement, to what extent it is true. Okay, and then we will go for some conclusion. Okay, now I am going to visualize the things. So before I go further, I am erasing all these things. Now see, light has no meaning without darkness. What does it mean? It means that this light and this darkness both are interdependent for its existence. This statement says
that light and darkness is what? Are interdependent. I am analyzing. Okay, and this light and darkness forms a continuum. This side is light, this side is darkness. If you are this side, means you are away from the this. If you are this side, so opposite pole, you can say opposite pole. I'm analyzing this thing and I am elaborating its meaning. That this statement says that this is intermittent. The semanticity of light means meaning, जो भी light की meaning is contingent upon the semanticity of darkness. If this doesn't exist, so interdependent is that existential things. If one doesn't exist, then other will not, and vice versa. Darkness है तो light का महत्व है. This is the meaning of that. And second corollary inferences we can draw this thing. Then darkness and light एक continuum बनाता है, एक opposite pole की तरह है. एक side हम जाते हैं दूसरे तरफ. Now this metaphorical things, this is a metaphorical things, has many examples, many elaborations in life. See this thing. For example, we always talk about ethical things. Ethical is there, but only when unethical things are there, ethical is recognized. Instinctual things are there, wild things are there, then ethical thing is recognized. See the dark and this part is light. अगर गलती नहीं होता, if unethical things are not there, wildness is not there, ethical will not be required. So very existence of this thing is this. Try to remember this. Honesty की वैल्यू इसलिए है कि डिसऑनेस्टी है, यानी करप्शन है. अगर करप्शन है इसलिए ऑनेस्टी की वैल्यू है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेटाफेरिकल कोरिलेट्स कि ये इसके जो प्रैक्टिकल कोरिलेट्स है, ये तो एक स्टेटमेंट है, एनालॉजी का है, एनालॉजी है. इसको हम लाइफ में कैसे देखते हैं. सो मैंने कहा कि ऑनेस्टी इसलिए होता है कि हम करप्शंस को झेलते हैं, है ना. तो ये जो चीज़ें हैं, कहता है कि ये दोनों का क्या रिलेशंस है. ऑनेस्टी की वैल्यू तभी होती है जब हम करप्शंस या डिसऑनेस्टी झेलते हैं लाइफ में, उसको, है ना. तो ये चीज़ें एग्जाम्पल है लाइफ का. अब थोड़ा और आगे चलते हैं. मीन्स डज इट मीन, जिसे हमने ये एलोबरेट किया, डज इट मीन दैट we should go on next page. I should not limit. Does it mean that darkness is necessary for light? बुराई के आधार पर ही, मतलब when I say that ये जो good है हमारा, suppose this is good, तो goodness जो है, does it develop on the basis of devil thing or bad things, you can say, badness? Try to understand. Should I say this thing? It will be valid to infer that thing. क्या हम philosophically ये चीज़ को समझ सकते हैं that अच्छाई का existence खराब होने के कारण ही है. यानी द ओरिजिनल थिंग्स इज, यू वांट टू, इफ वी बिलीव इन दिस वन फ्रॉम दिस एंगल, ओरिजिनल थिंग्स इज डार्कनेस, एंड इन ऑर्डर टू फाइट विद दिस थिंग लाइट डेवलप्स. एक पर्सपेक्टिव तो यही हुआ ना, ये देखो जो मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, एक तो पर्सपेक्टिव ये हुआ कि दैट गुडनेस डेवलप एज अ रिएक्शन टू बैडनेस.
बैड चीज़ों के रिएक्शंस में गुडनेस डेवलप और लाइक वाइज। इज इट करेक्ट टू से? हम इस एंगल से देखते हैं। अगर हम डीप जाकर देखें ह्यूमन नेचर का, कि कैन बी से दैट वी आर गुड बाय नेचर ऑल्सो? ये गुडनेस का यानी कि लाइट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता क्या? दिस इज द क्वेश्चंस। नाउ वी हैव पर्सपेक्टिव, वी हैव पर्सपेक्टिव। दो बातें हैं, एक तो है कि एग्जिस्टेंस हो सकता है कि नहीं, और दूसरा एग्जिस्टेंस है, वैल्यू हो सकती है कि नहीं। जैसे किसी कंट्री में, हम भूटान के बारे में बात करते हैं, बहुत स्ट्रेस कम है तो वहाँ पे हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस इज अ स्पॉन्टेनियस थिंग, इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रेरी थिंग कि उसके काउंटर करने के लिए जन्म हुआ है। तो हैप्पीनेस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकता है, you know, it may exist without so called sorrow and unhappiness, जो भी कह लें आप। यानी हमारे जो अनहैप्पीनेस का रिएक्शन में ही ये आया, ये ज़रूरी नहीं है, बट डेफिनेटली उसकी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब वो चीज़ें हों, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, अभी यूक्रेन और इज़राइल, दे आर फाइटिंग। इज़राइल एंड पैलेस्टाइन, सॉरी, यूक्रेन एंड रसिया, एंड लाइकवाइज यू सी दिस थिंग। व्हाई वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस? पीस एंड वॉर आर इंटरडिपेंडेंट थिंग। पीस की महत्ता तब होती है जब वॉर है, बट पीस मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। So see the philosophy. One philosophy is telling this thing, and other philosophy says that both light and darkness may exist side by side. Means they may have independent existence, but its importance will be, its value, you can say, its value means value of light will be assessed in connection with the extent of darkness. कितनी गहरी, जैसे कितनी लड़ाइयाँ हैं, वहीं पर पीस की महत्ता। पीस जैसे रेड क्रॉस जो करती है अपने दूसरे कंट्री में, वॉर अफेक्टेड एरिया में जो हेल्प पहुँचाती है, अभी जैसे पैलेस्टाइन में हो रहा है, तो रेड क्रॉस की इम्पोर्टेंस कब नज़र आती है? जहाँ वॉर है, हो रही है, जहाँ पे पीस का बहुत बड़ा रोल कब आता है? जब वॉर है। तो डार्कनेस है, लाइट है, अनहैप्पीनेस है, हैप्पीनेस है, वॉर है, पीस है, डिसऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है। मीन्स वैसा है कि वन पर्सपेक्टिव इज टेलिंग दिस वन। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट द टू पर्सपेक्टिव। दो पर्सपेक्टिव हम दिखा रहे हैं आपको। सी, वन पर्सपेक्टिव इज दिस वन एंड अदर पर्सपेक्टिव इज दिस वन। दिस वन, getting that both may exist side by side, but its importance is, ये कहता है कि नहीं, the very existence is this is a two approach। बोले कि लाइट इंडिपेंडेंट फिनोमिना नहीं है। लाइट जो है डार्कनेस को ख़त्म करने के लिए है। डार्कनेस जब मरता है तो लाइट जन्म लेती है। लाइट जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है या डार्कनेस के साथ कनेक्टेड है। ये कर, लाइट हैज़ इट्स मीनिंग, लाइट हैज़ नो मीनिंग विदाउट डार्कनेस जो कह रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब कि
ये चीज़ें तो है, मतलब मीनिंग के लेवल पे, मीनिंग का मतलब यहाँ इम्पोर्टेंस ही है उसकी, मीनिंग का मतलब सिमेंटिसिटी नहीं है, उसकी वैल्यू की बात हो रही है। देन हियर दिस साइड इज़ दैट कि डार्कनेस, जितना ज़्यादा डार्कनेस है लाइट की वैल्यू उतनी हो सकती है, जैसे जितना ज़्यादा करप्शन है वहाँ पे ऑनेस्टी की वैल्यू हो सकती है। आप समझ रहे हैं ना? अब जितना ज़्यादा ग्रीड है वहाँ पे जेनरोसिटी की वैल्यू हो सकती है। अब आप एग्ज़ाम्पल नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी मैं बता दूंगा कि यहाँ पे लंगर चलता है, यहाँ जहाँ पे कई डॉक्टर हैं जो सालों से मरीज़ों का भी इलाज करते हैं और उधर साइड बाई साइड भूखे लोगों को खाना भी दिया जाता है। दिल्ली में ये लंगर होता है, ये चांदनी चौक के पास, तो उनके कई 2-3 ब्रांच भी है। अब आप वो साइलेंटली हेल्प करते रहते हैं। अब आप बताओ इंडिपेंडेंटली गुडनेस का कोई एग्जिस्टेंस है या नहीं, ये एक फ़िलॉसफी है, इसको हमको समझना है। बहुत सारे फ़िलासफ़र्स जो हैं, जैसे सिगमंड फ्राइड को अगर आप देखें तो वो तो साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन उसने क्या लिया कि जितने भी ईगो है, हमारा जो कॉन्सेंस है, अगर हम गहराई से देखें तो वो इंस्टिंक्ट, यानी हमारे जो जैविकीय प्रवृत्ति है, हमारा जो वाइल्डनेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रियलिस्टिक तरीके से एडजस्ट करने के लिए डेवलप होता है। यानी कि हमारा जो ईगो स्ट्रेंथ है या और भी चीज़ें डेवलप जो होती है, वो एक्चुअली वो इंस्टिंक्ट को के कारण होता है। इंस्टिंक्ट है इसलिए उनका ज़रूरत होता है, वो डेवलप भी होता है। समझे? तो ये फिलॉसफी इंडिपेंडेंट तरीके से कहता है कि नहीं है, वो इस पे डिपेंडेंट है। अच्छाई का कोई इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है, बुराइयाँ रही है। दैट इज़ वाई व्हेन समबडी डू गुड थिंग देन दैट बिकम वेरी वैल्यूएबल थिंग। ठीक है? दूसरी फिलॉसफी, लेकिन मैं बार बार कह रहा है कि अच्छाइयाँ हो सकती है, बुराइयाँ भी है, रिकॉग्नाइज हो सकता है, उसकी मीनिंग हाईलाइटेड होती है, उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है व्हेन देयर इज़ डार्कनेस। लाइट का मीनिंग पता चलता है डार्कनेस, कि डार्क कितना है तो उसमें महत्व ज़्यादा है। बस एक आप समझिए कि आप रोटी की कीमत कब समझते हो? व्हेन यू विल बी वैल्यूइंग दैट थिंग्स। व्हेन एक दिन भूखे हो, 2 दिन भूखे, 3 दिन भूखे, कितने दिन? मोर यू आर हंग्री, मोर वैल्यूएबल दैट थिंग्स विल कम। वही है। तो आप समझ रहे हैं, इस पर्सपेक्टिव को मैंने आपको बताया। चलते हैं आगे। अब आप इसके पर्सपेक्टिव को जब एक्सप्लेन कर देंगे सारी चीज़ों को, तो क्या बचता है कि दैट लाइट एंड डार्कनेस, आपने इसके मीनिंग को एलोबरेट तो किया, उसके बाद उसके पर्सपेक्टिव पर ले आए, है ना? अब आप कहाँ चला जाए? आप एग्जाम्पल्स देते रह जाओगे, दे दो, लेकिन एग्जाम्पल्स से निचोड़ क्या नहीं, व्हाट यू आर इन्फरिंग फ्रॉम दोज एग्जाम्पल्स। आपने एक एग्जाम्पल दे दिया कि देखिए लोगों ने कैसे हेल्प किया लोगों का, ठीक है, जैसे हमने अभी दी, लेकिन व्हाट डज इट मीन? वो क्या कहना चाह रहे हैं आप? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट इन कनेक्शन टू दैट थिंग? कि जो ये फिलॉसफी दिया है इस स्टेटमेंट में कि लाइट का मीनिंग, लाइट हैज़ नो मीनिंग विदाउट डार्कनेस, यानी कि अच्छाई का महत्व बुराई के बिना नहीं है। मोटे तौर में कह सकते हैं दैट मीन्स गुडनेस हैज़ नो मीनिंग विदाउट बैडनेस। मतलब अगर ये सेंटेंस सही है तो आप समझ सकते हैं, बैड चीज़ों के बिना अच्छी चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। हमने इसको कंट्राडिक्ट करके बोला है, दिस इज़ ए पर्सपेक्टिव। नाउ आई एम क्लैरिफाइंग दिस थिंग, दिस इज़ ए पर्सपेक्टिव। फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव यू कैन से दिस थिंग, but from other perspective it says they both have independent existence. Yes, its importance is recognized only when the other is present. Contrast, जैसे कि you can see this thing, इस व्यक्ति की हाइट कितनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा दिखता है, जा रहा है अपना। लेकिन इसके साथ अगर एक बहुत ऐसा इंसान आ जाए बगल में चलते हुए, तब देखो क्या होता है। सी द थिंग्स, नाउ ही विल बी कॉल्ड ड्वार्फ कर लो या शॉर्ट
हाइट वाले लोग का, लोग जो भी देखो अभी तक इसे कोई कुछ नहीं कह रहा था, तो कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट के हमारे और कोई हरियाणा के, दोनों जब तक एक साथ नहीं होते, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, लेकिन जब दोनों एक साथ हो तो हाइट का कंपैरिजन नहीं होता, और तब आपको विजिबली यू मे से दैट ये शॉर्टर एंड टॉलर का कॉन्सेप्ट आप दे सकते हैं, कुछ वैसा ही है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कम देखो, हमने कोई ऐसा रेडीमेड आंसर नहीं बता रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट थिंकिंग एंड आई एम राइटिंग द सेम वे यू कैन डू इन एग्जामिनेशंस। सो ये फिलॉसफी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, देन डेफिनेटली इट हैज़ मेरिट दैट, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग दैट लाइट हैज़ नो मीनिंग विदाउट डार्कनेस, तो डार्क। लेकिन अब जैसे कहे कि पुलिस इसलिए है कि चोर है, चोर नहीं होगा तो पुलिस क्या करेगा? एक चोर कहे अपने से कि तुम्हारा तो जॉब इसलिए कि मैं हूँ, कहते हैं कई लोग आर्गूमेंट करते हैं, आप समझ सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टली सही है ना। आप इसी लाइन पर फिलॉसफी को ले जाएंगे और फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे, उसी डायरेक्शन में जाएंगे ना। फाइनली कंक्लूजन की तरफ जब जाएंगे तो आप यही कहेंगे कि ये फिलॉसफी है जो एक एंगल से समझाता है कि दोनों चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड। जैसा मैंने शुरुआत में बताया, अगर आपको पीछे के देखना है तो ये देखिए, ये बताया था ना, इंटरडिपेंडेंट है, कॉन्टिन्यूम है, डार्कनेस का लिंक है, नो डाउट। फिर आपने देखा होगा कि दैट हमने बताया दोनों पर्सपेक्टिव अलग हैं दोनों चीज़ों का। एंड फाइनली यू कैन गिव एग्जाम्पल, एलोबरेट एग्जाम्पल एंड कंक्लूड। कंक्लूजन क्या होगा? दैट दिस फिलॉसफी is correct, but in part goodness means good things have independent existence. It may exist, but yes, its importance is recognized only when. So दोनों चीज़ें कनेक्टेड है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये कहता है, एक फिलॉसफी ये कहती है कि दैट दोनों का ही महत्व है ना। अब जैसे मैंने हाइट का ले लिया, आप स्किन कलर का ले सकते हो, है ना, कि भाई कम ऑर्डिनरी पर्सन है तभी तो आप मिस वर्ल्ड चुन रहे हो या मिस इंडिया चुन रहे हो, है ना। ऑर्डिनरी लुक है, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक की वैल्यू हो जाती है, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है भाई। थिंग्स कुड बी गुड और बैड इन इट्स ओन वे। तो डार्कनेस के कारण से एग्जिस्टेंस नहीं है, उसका इम्पॉर्टेंस है। दिस इज द कंक्लूजन you should draw. I hope you are getting my point. I have not given, if I start giving examples, the things will be of 1 hour. मैं तो कितने एग्जाम्पल्स दे के रख दूंगा, लेकिन मैंने वो बैकबोन बताया है, मैंने स्ट्रक्चर बताया है। इस लाइन पर आप इसे को अगर ले जाए तो डेफिनेटली यू विल रीच द डेस्टिनेशन एंड विल कम अप विद अ वेरी फाइन जजमेंट दैट विल बी वैलिड ऑल्सो। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द कंक्लूजन दैट यू आर मेकिंग विल डेफिनेटली बी एक्सेप्टेबल। गेटिंग? तो ये इस तरीके से आप इस फ्रेम को ले जा सकते। हमने आपको ऐसे की वर्डिंग नहीं बताई। आई हैव एक्सप्लेन द अप्रोच, हाउ यू शुड थिंक, व्हाट शुड बी द, वेयर शुड बी द फोकस एंड व्हाट यू शुड एनालाइज। एंड ऑफ कोर्स यू कैन थिंक ऑफ एनी गुड एग्जाम्पल लाइट और डार्कनेस का। जैसे उंगली मार डाकू, गौतम बुद्ध रास्ते में चले जा रहे थे, दिन पीछे से आवाज़ आई, रुक जाओ। कहाँ पे? मगध के जंगलों में कहीं जा रहे थे। फिर भी चले जा रहे, फिर से उंगली मारा है डाकू, रुक जाओ, आवाज़ आई। तो गौतम बुद्ध रुक गए। उन्होंने कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? उंगली मार डाकू का था नाम, कहा जाता है मगध के क्षेत्र में, जब गौतम बुद्ध के माने 6 BC के टाइम का है कि वो जितने लोगों को मारता था उसकी एक उंगली काट के उसका माला बना लेता था। तो उससे याद रहता था। उसने कहा कि तुम कब रुकोगे जाए ये जंगली पना से? और उसने कहा कि मुझसे सब लोग डरते हैं, लेकिन यू आर द पर्सन, वो मुझे बिल्कुल नहीं डरे। तो वहाँ से फिर वो, तो देखिए यहाँ पे डार्कनेस उंगली मार, ब्राइटनेस और जो लाइट की बात कर रहे हैं वो गौतम बुद्ध,
दोनों हैं। अच्छे बुरे का जो डाइकोटोमी है वो दुनिया में बाय नेचर भी है, जैसे कि अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, प्रकाश भी है, अंधकार भी है, दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये ऑफ कोर्स एक दूसरे का ब्राइटनेस का, लाइट का महत्व डार्कनेस के रिलेशंस में नापा जाता है। तो इस लिहाज से आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। एक छोटे से डिस्कशन में मैंने सेंट्रल पॉइंट पे हिट किया है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। मिलेंगे अगले किसी और ऐसे टॉपिक के साथ और बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की। अगर आप हमारे ऐसे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं, हो सकता है ये फ्री क्लास के रूप में जाए, तो मैं मैसेज देना चाहता हूँ। हर एक सैटरडे को एक ऐसे होता है जिसमें आप लिखते हैं, वो एलेट किया जाता है, उसके मॉडल आंसर देते हैं, एंड दिस वे यू विल बी एबल टू डेवलप इस गुड रेट ऐसे राइटिंग स्किल्स। तो आप इसको, अगर आपके पास ये टॉपिक पहुँच रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ माई अप्रोच, एंड इफ़ यू फील सेटिस्फाइड यू कैन इनरोल फॉर इट। थैंक यू फॉर